पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों बड़ा सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। टीएमसी, जो कभी ममता बनर्जी की मजबूत टीम मानी जाती थी, अब अंदरूनी कलह से जूझती नजर आ रही है। पार्टी के वरिष्ठ सांसद और ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले कल्याण बनर्जी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने टीएमसी के भीतर की खींचतान को खुलकर सामने ला दिया। कल्याण ने सीधे तौर पर अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि या तो ममता बनर्जी उन्हें चुने या फिर अभिषेक को। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि जब तक अभिषेक पार्टी में रहेंगे तब तक उनका पार्टी में रहना मुश्किल है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं प्रियासी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी के भीतर उठ रही असंतोष की आवाजें अब खुलकर सामने आने लगी हैं। पार्टी के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी ने गुरुवार को ऐसा बयान दिया जिसने राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। कल्याण बनर्जी ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि सिग्नेचर फर्जीवाड़ा मामले में उन्हें अंतिम समय पर वकील के तौर पर हटा दिया गया, जिससे उन्हें गहरा अपमान महसूस हुआ। कल्याण ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अभिषेक बनर्जी का व्यवहार बेहद अहंकारी है और इसी वजह से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि वो पहले भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं, लेकिन उस समय किसी ने उनकी बात नहीं सुनी थी। कल्याण बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा है कि अब फैसला ममता बनर्जी को करना होगा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी तय करे कि उन्हें अभिषेक बनर्जी चाहिए या फिर उनके जैसे पुराने और समर्पित कार्यकर्ता। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर अभिषेक पार्टी में बने रहते हैं तो उनका पार्टी में रहना मुश्किल होगा। That was listed on Friday. Vacation means 6 hours I sat for that matter. Matter was not called on. Then at the end I mentioned the matter before the honorable judge. The honorable judge said that the matter will come up on Wednesday. Monday, Tuesday I was in Delhi for doing the matter. Tuesday I came here. And Tuesday, the search was conducted. Then yesterday morning I mentioned the matter before the court, Justice Kaushik Chandra, and said that matter is extremely urgent. And why urgency I explained, search and etc. The honorable court said that the matter would be taken up today. Yesterday at 12:30, one lawyer came and said that Abhishek Banerjee has sent to him. And I just tell me. Then said that regarding the search, another writ petition has been filed. I said that this is already I have mentioned the matter in the criminal division. Why did you file the petition without consulting me? You can file, but without consulting me. It's better that one man, one gentleman should handle the matter. And if you think that I can't do the matter, you take it the matter. And don't treat me as my dustbin. And inform me within 1 hour, 2 hours. Whole day nothing has been informed. I have been informed in the morning today by my son that around 12:30, instruction has come that Mr. Ayan Bhattacharya will appear, I will not appear. Very good. I am not appeared. And henceforth I will not be appearing in any matter on behalf of Abhishek Banerjee. Because this arrogant attitude, I don't like it. One must respect to the seniors. I am 45 years in the profession. All these persons have worked with me as junior. How can he humiliate me? I am also senior in politics. He can't do it in this way. He should understand because of him that we have lost it. He should understand this. He should understand the party is facing this problem because of him. Only because of him. But he will be going disrespecting everyone, disrespecting me. This is not tolerable. I can't tolerate. I will request the Didi, if you depend upon the Abhishek Banerjee, then you remain with the Abhishek Banerjee, leave me. And if you leave Abhishek Banerjee, I am there. Who has destroyed our party itself.
दरअसल ये पूरा विवाद उस समय और बढ़ गया जब कलकत्ता हाईकोर्ट में चल रहे सिग्नेचर फर्जीवाड़ा मामले में अभिषेक बनर्जी की ओर से पैरवी करने वाले वकीलों की सूची में बदलाव किया गया। कल्याण और उनके बेटे शीर्षान्य बनर्जी पहले इस मामले में पैरवी करने वाले थे, लेकिन बाद में दोनों ने खुद को केस से अलग कर दिया। हालांकि कल्याण बनर्जी का दावा है कि उन्हें खुद हटाया गया और इसकी जानकारी उन्हें देर रात दी गई। उन्होंने कहा कि इतने महत्वपूर्ण मामले में आखिरी समय पर हटाया जाना बेहद अपमानजनक था। इधर कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी। हालांकि अदालत ने उन्हें पश्चिम बंगाल सीआईडी के सामने पेश होने का निर्देश भी दिया है। कल्याण बनर्जी ने यह भी कहा है कि वो अभी भी ममता बनर्जी के साथ है और उनके नेतृत्व पर उन्हें पूरा भरोसा है, लेकिन उन्होंने दोहराया है कि पार्टी में सम्मान और विश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। उनके मुताबिक अभिषेक बनर्जी ने कभी उन पर भरोसा नहीं किया और यही विवाद की सबसे बड़ी वजह रही है। टीएमसी के भीतर बढ़ता ये असंतोष ऐसे समय सामने आया है जब पार्टी पहले से ही कई झटके झेल रही है। बीते कुछ दिनों में पार्टी के कई नेताओं ने बगावती तेवर दिखाए और कुछ सांसद इस्तीफा भी दे चुके हैं। राज्यसभा में टीएमसी को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। पहले सुखेंदु शेखर रॉय ने इस्तीफा दिया, उसके बाद सुष्मिता देव ने अपना पद छोड़ा और अब प्रकाश चिकबाराइक ने भी राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। लगातार हो रहे इस्तीफों से पार्टी की संख्या राज्यसभा में कम हुई है और राष्ट्रीय गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि आने वाले दिनों में कुछ और नेता भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या टीएमसी के भीतर चल रहा ये विवाद सिर्फ नेताओं की नाराजगी तक सीमित है या फिर पार्टी में बड़े बदलाव का संकेत है। सबसे अहम बात होगी कि कल्याण बनर्जी के अल्टीमेटम पर ममता बनर्जी क्या रुख अपनाती हैं और क्या वो पार्टी के भीतर बढ़ती नाराजगी को संभाल पाएंगी। फिलहाल पश्चिम बंगाल के राजनीति में टीएमसी के भीतर मचा ये घमासान आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि ममता बनर्जी के अगले कदम क्या होंगे। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।